اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بہت بڑھیا جی. اب آپ اپنی اسٹوری ہمیں شیئر کریں اور تھوڑا دھیان رکھیں کہ اپنی جگہ کا نام نہ لیں بالکل بھی، اور آپ کا بھی نام اور کسی آپ کے جاننے والے کا نام نہ نکلے غلطی سے آپ کے منہ سے. تو آپ اپنی اسٹوری شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کیا کچھ آپ نے ایکسپیرینس کیا. جی اچھا، تو میری اسٹوری ایسے شروع ہوتی ہے. ہمارے بچپن میں مطلب جیسے کہ میں 1 سال کا تھا، تب ہمارے والد صاحب نے ہمارے امی جان کو چھوڑ دیا تھا. مطلب طلاق وغیرہ ویسا کچھ نہیں ہے، ان کی کچھ بنتی نہیں تھی تو الگ رہ گئے. اس کے بعد میں پھر ہم بھی الگ رہ گئے. ہمارے امی جان ہم کو کما کر پالتی تھی خود سے. اچھا. تو ہم گاؤں دیہات میں تھے. پھر دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے. پھر ہم کو مطلب ایسا اردو وغیرہ سے نہیں پڑھا ہے، ہم کو مراٹھی اسکول سے پڑھا. جیسے کہ میں مہاراشٹر سے ہوں. اچھا. تو پڑھائی میں ہم اچھے تھے. میں میرا بھائی، ہم جتنے بھی ہمارے گھر میں میرے بھائی لوگ ہیں. پھر دھیرے دھیرے بڑے ہوئے. کبھی کبھار گھر میں تو اتنا دینی ماحول نہیں تھا. کبھی کبھار گھر میں کہہ دیتے تھے آس پاس کے بچے جا رہے ہیں مسجد میں، جاؤ، تو چلے جاتے تھے کبھی کبھار. ویسا تو کبھی فورس نہیں کیے، مگر وہ بڑی رات ہے جاؤ، ٹھیک ہے. گئے، جا کے عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آتے تھے. اتنا کوئی تھا نہیں گھر میں دینی ماحول. پھر ہم بڑے ہوئے. تقریباً میری عمر 16 سال ہوگی. تب دیکھتا تھا میرے دوست کئی جماعت میں جا کے آ چکے تھے، تو کہنے لگے جا کے آ. اچھا. پھر میں بھی 40 دن کے لیے چلا گیا جماعت میں. تب تک مجھے نہ نماز کا پتہ تھا نہ دین کا پتہ تھا. بس اتنا پتہ تھا ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک اللہ ہے بس. اور فیملی میں بھی اتنا کسی کو بھی جانکاری نہیں تھی کہ ہمیں بتا سکتے. وہی دوست لوگ مذاق اڑاتے تھے. اور ہمارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر بازو والے کو اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. مطلب اگر کوئی جاننا بھی نہ چاہے تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی تو جماعت میں جا، یا مجبوراً 5 وقت کی نماز پڑھ. تو پھر میں بھی گیا 40 دن. تو شروع میں اتنا کچھ عجیب نہیں لگا. تبلیغی جماعت ویسے آپ جیسے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی؟ ہاں 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 جنہیں پتہ نہیں ہوتا نا اسلام کا کچھ بھی، ہمیں ان کی پتا نہیں برین ہوتا. واشنگ کے لیے تبلیغی جماعت بنائی گئی تھی. ہاں، تو وہاں پر جانے کے بعد شروع میں تو ہمیں 5 وقت کی نماز کا طریقہ، کس وقت میں کتنی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر وہ سورہ یاد کیے. پھر دھیرے 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 برین واشنگ مطلب ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ ماننا ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے صرف آخری اور ایک نبی ہیں جو ہم جس کی امت سے ہیں. ایک اللہ ہے، چلو ٹھیک ہے. پھر دھیرے دھیرے جماعت میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ ہمارے نبی، اب جبکہ وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، لوگ ان پر پتھر مارتے تھے. وہ گھر پہ آتے تھے تو ان کے زخم، مطلب جسم پہ اتنے زخم ہو جاتے تھے کہ ان کا پورا جسم خون سے لال ہو جاتا تھا. مطلب پوری ایموشنل اسٹوری سنا کے تو ہمارے نبی نے اتنا دن کے لیے کیا. کھانا نہیں کھاتے تھے، راتوں کو جگتے تھے، سوتے نہیں تھے، امت کے لیے روتے تھے. پیٹ پہ پتھر باندھ کے سوتے تھے بیچارے. ہاں ہاں، عورتیں کوڑا پھینکا کرتی تھیں ان کے اوپر. ہاں، تو دیکھو اپنی زندگی تو بہت بہترین ہے. شکر ادا کرو کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ایسی ہے جس کو کیا بولتے ہو، حشر کے دن کا، قیامت کے بعد جب اللہ سب کو عرش پہ کیا حشر میں بلائے گا، تو سب سے پہلے ہم لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. ہم لوگ ہی پہلے جنت میں جائیں گے. جیسے کہ اللہ کو اس سے پہلے جتنے نبی آئے تھے ان سے کچھ تعلق نہیں تھا، زیادہ مطلب محبت نہیں تھی.
वही सिखाया जाता है दरअसल कि अल्लाह को सिर्फ मोहम्मद से ही प्यार था ज़्यादा, और मोहम्मद के क्या बोलते हैं उसको सदक़े में अल्लाह ने दुनिया बनाई। ठीक है, तभी मान लेते थे, और तब उम्र उतनी थी नहीं, 16-17 साल उम्र होंगी मेरी शायद। तो हम भी मान लेते थे वो साहबा के किस्से, वो किस्से भी इस तरह के होते थे। वो आपकी वीडियो देखने के बाद पता चला कि हाँ, ऐसा भी होता था। किस्से अलग भी हो सकते थे, मतलब होते थे, मगर वो होता क्या है, तबलीग की जमात में चुन-चुन के आपको हदीसें सुनाई जाती हैं सिर्फ़। इस्लाम कितना अच्छा है ये बताने के लिए, और गुनाह क्या होते हैं, गुनाह से कैसे बचा जाता है, कौन से साहबा कितने क्या बोलते हैं उसको अल्लाह वाले थे, मतलब वो दीनदार थे, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए कितने अच्छे अमाल करते थे, वही सिखाया जाता है शुरू में। फिर वो 40 दिन में शुरू में कई बार मुझे जमात में वो बात भी करनी होती है ना, मगरिब के नमाज़ के बाद। ये जितने भी नमाज़ को लोग आते हैं उनको बात करना पड़ता है कि हाँ सर, मतलब उनको बताना पड़ता है अपने को जो आता है, जैसे कि कुछ हदीसें बता दी, अल्लाह का डर, नमाज़ें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और नमाज़ की दावत देनी होती थी। तो कई बार तो मुझे जमात में बात करने के लिए बैठाए, और मैं पहले से ही बचपन से बात करने में उतना अच्छा नहीं हूँ। वो 4 लोग सामने रहेंगे ना तो मैं बात नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, तो तब तो मैं बात नहीं किया ज़्यादा, मगर जब हमारी जमात का आखिरी 2 दिन बचे थे, तब ऐसे हुआ कि वो हम जहाँ पे थे वो भी गाँव ही था, देहात। तो वहाँ पे 4 मस्जिदें थी, तो हर एक मस्जिद में हमारे 2-2 3-3 साथी चले गए, मतलब जमात में थे 2 आदमी 3 आदमी की जोड़ी-जोड़ी बनाकर भेज दिए। तो आखिरी बार मैंने वहाँ पे इशा के बाद मैंने बात की थी, एग्ज़ाम्पल में बयान करा था मैंने। वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, ऐसे 2-4 बातें करके, मतलब उनको दरअसल बताना यही था कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ की दावत देनी थी। तो मैंने बात करा, तो वहाँ पे जितने भी मेरी बात सुन रहे थे ना, वो पागल हो गए थे। अच्छा, क्या कह दिया आपने ऐसा? तो दरअसल मैं था कम उम्र, और मैंने इतना कॉन्फिडेंस से बात किया तब, 40 दिन तो वही सुनते आया था। और मुझे एक बात पता चली कि वो जमात में जो हमारे अमीर रहते हैं ना, वो क्या करते थे, मौलानाओं के यूट्यूब पर बयान सुना करते थे, और जब उनको बात करने के लिए कह देते थे मस्जिद में कि आप इस नमाज के बाद बात करो, तो वो जो बयान सुनते थे मौलाना के, वो सेम टू सेम कॉपी मार देते थे, मतलब इधर सुना और इधर बोला। तो हमारे मोमिन भी ऐसे, तो किसी को पता नहीं होता था कि वो किस मौलाना का बयान है। सही बात है। मौलानाओं से कोई कभी रेफरेंस भी नहीं पूछता है, पता है? मौलाना कुछ भी बोल देते हैं। कई बार तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एक अच्छी हदीस है, वो ज़ईफ़ भी है ना, उसे बोल देंगे। कई बार तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एक अच्छी हदीस है, वो ज़ईफ़ भी है ना, उसे बोल देंगे। कोई उनसे कभी सवाल, और कई बार तो ये भी देखा है मैंने कि कोई हदीस भी नहीं है, कुछ भी अपनी तरफ से कहानी बना के बोल दी, नहीं, बस नहीं, लोग वो माशाअल्लाह कैसा है, सुभान वो अल्लाह कर देते हैं। आधी तो उनकी खुद की राय ही होती है, मतलब वो खुद के दिल से ही बताते हैं। मैंने भी कई बार ध्यान दिया है। तो फिर मैं भी वो हमारे आमिर साहब का देख के मैंने भी रट के बयान किया था वो आखिरी। तो लोगों ने क्या कहा मुझे, साथी आप एक दिन ऐसा आएगा, लाखों के मजबूर में आप बात करोगे। अच्छा। तो कई लोग उसमें से पूछ भी रहे थे मुझे कि आप हाफिज हो? मैं बोला नहीं। फिर तब तो मैं मतलब काफी दीनदार था, 5 वक्त की नमाज जितना जरूरी है नॉर्मल एक मुसलमान के लिए, उतना तो सब कुछ आता था, दिन की उतनी जानकारी थी। फिर हम जमात में से आए, तो फिर जमात में से आने के बाद मैं तकरीबन 6 महीना या 7-8 महीना मेरी फजर तक नहीं छूटी नमाज, फजर की नमाज। और अक्सर जब ऐसा लोग वहां से वापस आते हैं ना, तो बहुत दीनी बनकर लौटते हैं। बहुत दिन है आखिरी, मतलब वो खुद को ऐसा समझिए कि वो डायरेक्ट से नबी के हाथ पे ईमान ला कर आए हो। हाँ। अच्छा, मैं सभी को सजेस्ट करूंगा इसके लिए कि प्लीज आप सभी लोग मेरी तबलीगी जमात वाली वीडियो जरूर देखें। उससे आपको पता चलेगा कि तबलीगी जमात की वजह से आज मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, और कितना ज्यादा लोगों को कट्टर बनाया जा रहा है तबलीगी जमात के जरिए। तो उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब एक आदमी तबलीगी जमात से रिटर्न अपने घर में आता है ना, तो वो साथ में इस्लामिक शरिया भी लेकर आता है।
तो उसके अंदर शमा की स्टोरी है, और ऐसी स्टोरी है वो, उसके कमेंट्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने ये बात लिखी है कि ये स्टोरी तो हमारी ही स्टोरी है, या इस स्टोरी को तो हम जानते हैं, हमारे जानने वालों में ऐसा हुआ है, इतनी कॉमन स्टोरी है वो। तो ये रियलिटी है कि जब लोग वहां से आते हैं तो बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश होकर आते हैं। और इसीलिए अगर ये दो चीजें मैं अगर समझता हूं कि इस्लाम अगर इंडिया से कट्टरता खत्म करनी है तो दो चीजें बस हमें करनी है, एक तो तबलीगी जमात पर बैन लग जाए, और दूसरा मदरसे जो है इन पर बैन लग जाए और बच्चों को रेगुलर एजुकेशन दी जाए। अगर ये दो चीजें इंडिया में हो गई ना तो मुझे लगता है कि कट्टरता कहीं भी रह जाएगी। और अभी हुआ भी था पीछे, एक न्यूज भी आई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों को बैन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया। अब देखें, उसकी भी सुनवाई होनी है, मेरे ख्याल से उसमें जुलाई में शायद सुनवाई है उसकी, देखते हैं क्या होता है उसमें। चलें जी, बताएं आप। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल में मेरा एक दोस्त जाकर आया है जमात में। तो वो समझिए उसकी थिंकिंग इतनी अच्छी थी, उसकी सोच, कि वो उसके उसके मैं जब बातें सुनता था तो मुझे लगता था यार ये काफिर है, ये नास्तिक है लगता था मुझे। अच्छा। मतलब इतना ओपन, उसका एकदम दिमाग खुला था। मतलब वो इतना दीन धर्म कुछ भी नहीं मानता था वो, ऐसे उसको मजहब से कुछ लेना देना था ही नहीं। हम्म, तो वो जमात में जाके आया, वो आज, वो अभी उसको मैं देखा, वो इतना कट्टर हुआ है ना। उसको जो अच्छा। अपने गैर मुस्लिम जितने भी उसके दोस्त थे ना, हम्म, वो उनके साथ भी नहीं बैठता अभी ज्यादा। अच्छा। अच्छा, आपकी नजर में वो बंदा काफी अच्छा बंदा था, रैशनल बंदा था, और आज के टाइम पे उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया। इतना अच्छा। कि वो अपने पुराने हाँ, दोस्तों के साथ भी नहीं बैठता। अच्छा। तो नहीं आप मगर कैसे बच हमारे, गए? आप कैसे बच गए? नहीं सर, मुझे काफी वक्त हो चुका है। मेरी उम्र अभी आपको पता है, मैंने आपको हाँ, पहले हाँ। बताया। नहीं, ज्यादा ज्यादा चीजें रिवील मत करना लाइव में। हाँ, हाँ, तो ठीक। तकरीबन हम्म, 9 9 साल से ऊपर तो हुआ होगा। हम्म। उसके बाद नहीं गए क्या आप दोबारा? उसके बाद 1 2 बार मैं 3 दिन लगाया, मैं ज्यादा नहीं लगाया, क्योंकि घर की हमारे सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है कि बार बार हम जमात में जाएं। हम्म, फिर अच्छा। वो, हाँ, तो फिर क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जिससे आपको लगा कि ये सब गलत है? क्या कुछ ऐसा, कहां से आपको लगना स्टार्ट हुआ? सबसे पहले तो हाथ में मोबाइल आया। हम्म, फिर स्टार्टिंग में तो कोई भी हाथ में मोबाइल आने के बाद इंटरटेनमेंट ही देखता है। फिर धीरे धीरे लोग, पहले तो हमको पता भी नहीं था कि मोबाइल पे हम इतना कुछ जान सकते थे या समझ हम्म, सकते थे, या कुछ मन में सवाल है अपने तो सर्च कर सकते थे, इतना पता नहीं था ना। तो धीरे हम्म, धीरे पता चला। फिर आप पहले तो हमारा रुझाव किधर, साइंस की तरफ, कि कैसा हम्म, होता है, ये चीज हम्म, कैसी, वो चीज कैसी। और यूट्यूब पर फैक्ट बताने वाले भी कई यूट्यूबर हैं, हम्म, हम्म, तो वो फैक्ट वाली वीडियो देखी। हम्म, अभी जैसे कि बचपन में मुझे याद है हमारी साइंस की टीचर ने एक सवाल पूछा था कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। हम्म, तो हमारी पूरी क्लास, मैं जब काफी छोटा था, 5वीं या 6ठी का हूँगा हम्म, तब मैं, तो मुझे हम्म, उसका जवाब तब पता था, तो मैंने हाथ ऊपर किया, तो उन्होंने